Assalamu alaikum everyone. This is Maria Sarfraz from Office of Corporate Linkages and Placements, and today we bring you our second episode of digital series Minding Your Own Business with the topic of government facilitation for emerging entrepreneurs and the way forward. Wow. And our guests for today are from Punjab Revenue Authority. PRA basically works as a neutral tax law enforcement agency, ensuring that government's due tax share in economic activities is reaped in the optimal level. I would like to introduce you all to our guest for today, Mr. Umar Farooq Khan and Mr. Mahloyal Fazal. Mr. Umar Farooq Khan is a business graduate from FAST Lahore. He has worked in the steel sector for 2 years before joining government service. Currently, in addition to other roles, he is the focal person at Punjab Revenue Authority. Whereas our second guest for today, Mr. Mahloyal Fazal, who is Enforcement Officer and Staff Officer to Commissioner at Punjab Revenue Authority, has over 3-year experience, work experience in the public service for delivering by ensuring judicious revenue mobilization based on harmonized system necessary for sustainable development by promoting voluntary tax compliances. He has earned MPhil degree with distinction grades to his credit in courses and research work. Mahloyal is currently working for Punjab Revenue Authority, Finance Department, Government of the Punjab as an enforcement officer and works on revenue generation through broadening of tax base of the sales tax on services by initiating modern and responsive tax management ideas that minimizes the physical human interaction for service delivery, augmenting fully augmented fair transport and trustworthy tax system. He has a keen interest to be part of the public service delivery initiatives, having ambition to promote tax-paying culture among the public to sanitize them through the significance of taxes as a vehicle for sustainable development. So I would request you all to welcome Mr. Umar Farooq Khan and Mr. Mahloyal Fazal. I would like to thank you too for taking out time from your busy schedule and looking forward to learn from your vast knowledge about PRA and sales tax. Well, thank you so much. I think we'll keep the session in Urdu and English, both languages, to create a proper understanding for the audience. अच्छा, basically थोड़ा सा सबसे पहले तो I'm really thankful to you as well कि आप लोगों ने चांस दिए कि गवर्नमेंट आपसे इंटरेक्ट करे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स. अपना सेशन हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि टैक्स बेसिकली क्या है. टैक्स जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. इसको बेसिक लफ्जों में एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. जो होता है डायरेक्ट टैक्स वो कहलाता है इनकम टैक्स. अब इनकम टैक्स क्या चीज है? कोई भी ऐसी चीज जो कि आप अर्निंग कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई रेंटल इनकम है या बिजनेस के थ्रू आपको प्रॉफिट आ रहा है, किसी भी किस्म की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लागू होता है जो कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है. अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स. इसके अलावा सेकेंड जो चीज है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है सेल्स टैक्स. और सेल्स टैक्स क्या होता है? जो आपने खुद से पे नहीं करना होता, आपने अपने कस्टमर से रिसीव करके गवर्नमेंट को जमा कराना होता है. अच्छा, सेल्स टैक्स के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज. अब सेल्स टैक्स ऑन गुड्स क्या है? सेल्स टैक्स ऑन गुड्स वो चीज है कि आप कोई टेंजिबल चीज बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टील बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, उसके ऊपर वो लागू होता है. व्हेयरएज सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो सर्विसेज पे लागू होता है, जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं, जैसे कि आपके रेस्टोरेंट्स हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं, पार्लर्स हैं, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी, ये सब सर्विसेज के एम्बिट में आता है. अच्छा, 18th अमेंडमेंट के बाद जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करने का इख्तियार था वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज को दे दिया गया था, जिसकी बेस पे हम, जैसे कि पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसी तरह बाकी सूबों में भी डिफरेंट अथॉरिटीज हैं.
इससे आगे पीआरए ऑपरेट कैसे करता है, सेल्स टैक्स की कलेक्शन कैसे होती है, थोड़ा सा मेलोल साहब आपको गाइड करते हैं प्लीज सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मालोल फजल, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। सेल्स टैक्स के हवाले से जब बात की जाए तो इंटरनेशनली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट के नाम से याद किया जाता है। ड्यू टू cultural, you can say that, or environmental issues in the subcontinent, it has been introduced in the subcontinent with the term of sales tax. Sales tax. There are two types, as Mr. Omar Farouk has mentioned. One is the sales tax on services, and another is the sales tax on goods. What PRA is doing, that PRA is basically the tax collection agency for sales tax on services. Sales tax on services में हमारे पास there are 69 types of services that are scheduled in our act, and we are collecting tax on those services in due course of times. ओवरऑल अगर बात की जाए तो 69 इंडस्ट्रीज सर्विसेज जो है itself 69 इंडस्ट्रीज ही ट्रीट होती हैं। इसमें सिलसिलाकार इस तरह है कि 69 सर्विसेज की जुरिसडिक्शन डिवाइडेड है डिफरेंट ऑफिसर्स के दरमियान। What PRA is doing, PRA is more sort of innovative organization delivering the public service initiatives. इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए वो ये है कि we have very minimal human interaction with the officer. We have automated systems here. If you want to register yourself to PRA, or if you want to apply for after registration, you have to apply for a filing of tax returns and generation of the PSIDs. You can easily get. उसमें यहाँ पर हमारे पास जो सबसे डिजिटल वे में अवेलेबल टूल है वो हमारी वेबसाइट है। उसके ऊपर हमारी सारी कैटलॉग्स, हमारे सारे ब्रोशर्स और FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो अवेलेबल है। उसमें ये बिल्कुल भी एक एम्बिग्यूटी या फिर कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको लगता हो कि कोई एक बैरियर है फॉर यू टू कंप्लाई विद द लॉज इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पंजाब, इन अ मैटर दैट, क्योंकि हमारे पास मैंडेट जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, तो वी आर डीलिंग विद दैट। What we are trying to do is we are seeking the broadening, and we are also creating an environment based on the voluntarily compliance. Enforcement doesn't mean कि हम कोई बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ेस क्रिएट करने के लिए कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे किसी भी टैक्स पेयर के खिलाफ। ऐसी मैनेजमेंट की कोई भी ना ऐसी कोई विजन है ना ही ऐसा कोई मोटिव है जिसकी बेसिस के ऊपर वो ये करें। What management is trying to do on behalf of management, what PRA is trying to do is that we are actually boosting the tax paying culture by voluntarily compliance. तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जी voluntarily compliance के बाद कोई कि जी हम अगर रजिस्टर हो जाएंगे या हम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पीछे लग जाते हैं। ये फियर है जस्ट, वी हैव टू क्लियर दैट फियर कि ऐसा कुछ भी नहीं है एट एनी लेवल। Government is always available, or departments are always ready to listen others, that how you people as an entrepreneur or you people as a businessman, how businesses can reduce their compliance cost. And for that purpose, we have many initiatives that have been already introduced and executed for the taxpayers that I think Umar Farouk would be more to tell you about that initiatives. जैसे कि हमने अभी अर्ज किया, मेलोल साहब ने आपको कहा है कि इदारे की ये कहीं कोशिश नहीं होती कि उसने एक खौफ और डर का मकाम जो है ना वो पेश करना है टैक्स पेयर्स या बिजनेसमैन के आगे। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे हैं कि हम लोगों की PRA के अंदर जो है ना वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी, लाइक एनी टैक्स पेयर और एनी पर्सन कैन कम टू अस फॉर गाइडेंस रिलेटेड टू एनी टैक्स और समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे रिसेंटली टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है। उस टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर का मकसद ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि टैक्स की नॉलेज नहीं रखता और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा है, वो कभी भी हमारे पास जो हमारी ऑफिस टाइमिंग्स है उसमें हाजिर हो सकता है, अपने सारे कंसर्न्स क्लियर कर सकता है और
उसको अगर लाइक फॉर एग्जांपल आप माशाल्लाह अगर हमारे साथ इस टाइम स्टूडेंट्स काफी सारे जो है ना वो जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है, आप सारे यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं, और अब जब कल को इंशाल्लाह आप अपने बिजनेसेस खोलेंगे तो आप इतनी तो सेंस रखते हैं कि आपको कोई चीज गाइड कर दी जाए तो आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है एक कंसल्टेंट को या जो आपने अकाउंटेंट को देनी है वो खत्म हो जाती है। हमने ऐसे आपको फैसिलिटेट किया हुआ है कि फैसिलिटेशन सेंटर में आप आएं, हमसे पूछें टैक्स हमने किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, हमने रिटर्न कैसे फाइल करनी है, रजिस्टर कैसे होना है, तो हम उसके लिए आपके लिए बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे डिफरेंट चीज हमारे पास है वो ये है कि हम लोगों की रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज, एसोसिएशंस, चैम्बर्स, और ये जैसे कि सेक्टर्स हैं। अब स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज्यादा इन हैं, आजकल रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं अपनी जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं खास तौर पे। आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंड आया है ये टी स्पॉट्स का जी। तो अब जब आपने कोई बिजनेस खोलना है तो आपको इस चीज की नो हाउ होनी चाहिए कि आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही है कि आप गाड़ी चलाने लगे और आपको ये पता है कि गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। तो इसी तरह आप अगर एक बिजनेस रन करने लगे हैं तो बिजनेस रन करने के लिए आपको डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर कराना है, और डिपार्टमेंट आपकी सपोर्ट के लिए टोटली अवेलेबल है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कलेक्शन होती कैसे है। हम लोग जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जी कि जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो पता नहीं लोगों को आके सील कर देते हैं, बिजनेस प्रेमिसेस बंद कर देते हैं और इस तरह के मामला होते हैं। वो एक्शन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होता है जो कंसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर या सर्विस प्रोवाइडर्स हों। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता कि किसी को हम उठ के जाके जो है ना उसकी बिजनेस प्रेमिसेस सील करते हैं। हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ये है कि पहला नोटिस जाता है, दूसरा नोटिस जाता है, तीसरा नोटिस जाता है, यहाँ तक कि इन 3 नोटिस के बाद मजीद इंटीमेशन होती है। ऑफिसर बिजनेस प्रेमिसेस विजिट करके भी एक दफा जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज रजिस्टर हो जाएं ताकि आपके खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो। उस केस में भी अगर कोई रजिस्टर नहीं होता तो फिर ऑटोमेटिकली मजबूरी बन जाती है कंप्लायंस लेवल बढ़ाने के लिए उसकी सीलिंग करना। ये बात है। दूसरी बात, आपसे आज इंटरेक्शन का मकसद एक और भी था, वो ये था कि हमारे पास आजकल बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। लोग किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, किसी डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और इनवॉइस की हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जी इस बंदे का STR नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका ये नहीं लिखा हुआ, इसने टैक्स चार्ज किया हुआ है तो ये नॉन कंप्लायंट है, ये टैक्स चोरी कर रहा है। थोड़ा सा आपको उसके हवाले से मैं गाइड कर देता हूँ। जो कि स्टैंडर्ड लॉ के तहत एक सर्विस प्रोवाइडर की इनवॉइस होनी चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर के लिए STRN नंबर नहीं होता, STRN नंबर सिर्फ गुड्स वाले के लिए होता है। PRA सिर्फ PNTN नंबर इशू करता है। जैसे कि रेस्टोरेंट्स पे आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट की इनवॉइस के ऊपर PNTN नंबर मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा वो उसको स्पेसिफिक जो है ना वो उसने अमाउंट आपको, यानी कि जो 16% आजकल स्टैंडर्ड रेट है वो इंप्लीमेंट करना है। और रिसेंट बजट के बाद ये रेट अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करते हैं तो 5% एप्लीकेबल है फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। अच्छा, इसके अलावा इसी के साथ साथ हमारा एक नया इनिशिएटिव है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि EIMS कहलाता है। वो हम तमाम सर्विस इंडस्ट्री पे अप्लाई कर रहे हैं। उससे आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग, हम लोग सब जो कि रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह खाना खाने जाते हैं, इनवॉइस के ऊपर स्पेसिफिक QR कोड होगा हमारा PRA का, होगा नहीं बल्कि है, अब आजकल हर जगह हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन है या उसको कोई एम्बिग्विटी है किसी किस्म की, तो वो QR कोड एट द टाइम स्कैन कर सकता है और वो पता लगा सकता है कि ये टैक्स पेयर एक्टिव है कि नहीं। मजीद इसकी फंक्शनैलिटी और इसके जो फायदे हैं वो आपको मेरे साथ गाइड करते हैं सर। As I told you earlier about the initiatives of PRA का जो सबसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सबसे जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि क्योंकि आजकल आपको पता है कि देयर आर सो मैनी कंटेम्प्रेरी डिजिटल टूल्स अवेलेबल जिनकी मदद से ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपने सिस्टम्स को भी एफिशिएंट कर सकते हैं। इन इनिशिएटिव्स को लेके मैं आगे PRA से रिलेटेड बात करूंगा कि PRA के कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो डिजिटली अवेलेबल हैं आपको और जिनकी मदद से ना सिर्फ आप इवन ऑन योर अदर साइड विदाउट विजिटिंग आवर ऑफिस आप उसकी कंप्लायंस भी कर सकते हैं और वहाँ से कोई गाइडलाइंस जो चाहिए आपको आप वो भी ले सकते हैं। One of them is, as Umar has told you, EIMS.
EIMS इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम डजंट मीन कि ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट के ऊपर इंस्टॉल्ड होगा. EIMS system is basically integrated with other service sectors as well. Supposedly hotels में भी ये EIMS system integrated है. उसके अलावा ये EIMS system courier service में भी integrated है. Restaurant तो इसमें already included है. अच्छा, इसमें एक फायदा बेसिकली टैक्स पेयर का ये है. बेसिकली टैक्स पेयर को जब ये कन्विंस किया जाता है तो टैक्स पेयर को ये लगता है कि शायद पता नहीं हम कोई मॉनिटरिंग टूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर. दैट इज नॉट द वे. मतलब इफ देखें, दो चीजें हैं, एक है टैक्स अवॉइडेंस, एक है टैक्स इवीजन. इवीजन अगर आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली कोई भी आपकी जितनी भी आपकी आउटपुट है तो इवीजन के ऊपर डेफिनेटली डिपार्टमेंट के पास लॉज हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है. बट द थिंग इज एक फेयर टैक्स पेयर है और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में वो डिक्लेरेशन दे रहा है अपनी. तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको क्या ऑफर कर रहे हैं. द थिंग इज दैट यू कैन से दैट द लॉजिक बिहाइंड दैट सिस्टम इज दैट कि आप अगर अपना EIMS का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंटीग्रेट कर देते हैं PRA के सिस्टम के साथ, तो व्हाट यू कैन गेट इज दैट कि आपकी रिटर्न्स जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि जी हमें रिटर्न्स हर महीने एक वकील करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ रही है, वो रिटर्न जो है हमारी जाने पे बजाय इतना टैक्स नहीं होता जितना मुझे अपने वकील को पैसे देने पड़ जाते हैं, कंसल्टेंट को पैसे देने पड़ जाते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो डूइंग देयर बिजनेस. उसमें क्या है कि जब ये सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है तो आपकी रिटर्न ऑटो पॉपुलेट हो जाती है. ऑटो पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ऑन वन गो जब आप अपने लॉगिन में लॉगिन करेंगे तो आपकी एक रिटर्न ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ योर EIMS सिस्टम एक बनी पड़ी हुई है. और उसमें आपने करना क्या है, यू आर वन क्लिक अवे, जस्ट लाइक दैट यू आर हियर. आपने एक वन क्लिक बटन प्रेस करना है, आपका चालान जनरेट होगा. चालान में भी ADC चैनल हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं. पहले जाके आपको क्यूज में लग के बैंक में फी टैक्स जमा करवाना पड़ता था. अब ऐसी कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है. यू आर वन क्लिक अवे. मोबाइल इज योर द सेकंड queue. You can say that you can use that tool and you can pay your taxes easily. The one thing. Second digital initiative and innovative initiative of PRA is that as we are before you through this digital platform, हमने एक e-courts का concept introduce करवाया हुआ है. E-courts में ये है कि कोई भी ऐसी hearing supposedly अगर आपके पास किसी एक एडजुडिकेशन की हेयरिंग किसी भी अफसर के पास है तो वो ऑफिसर क्या करता है, वो आपको वीडियो लिंक पे बट वेयर एवर यू आर, मतलब यू कैन से दैट वी हैव हियर टैक्स पेयर ऑन नॉट ऑन द लाहौर जुरिसडिक्शन बट वी आर डीलिंग विद पंजाब एंड इवन अदर प्रोविंसेस एज वेल. तो उनका वहां पर यहाँ पर आना, वहां से दैट इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल. एंड यू नो दैट द कोविड द थिंग्स हाउ ड्रास्टिकली दैट द थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड. तो उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज इस तरह है कि ई-कोर्ट्स में आप अपनी हेयरिंग, अपने इश्यूज, अपनी जो भी आपकी वहाँ पे डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे भी फीडबैक ले सकते हैं आप. The third thing that is bit advanced, but we have done our pilot project, but and we have done sort of 3 or more activities to that. That is about the use of drone technology. अब ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं कि समटाइम्स वी आर कवरिंग द इवेंट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स इन लाहौर विसिनिटी, स्पेशली इन विंटर सीजंस. तो हमारे ऑफिसर्स को यहाँ पे बड़ा मसला होता था कि जी वो इवेंट में हाउ मेनी पर्सन्स ड्यूरिंग दैट फील्ड विजिट, और उनकी डेकोरेशन में एक बड़ा मिसमैच आता था और बहुत ह्यूज गैप होता था. उसमें हमने व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि पर्सनल आइडेंटिटी छुपा के हमने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा दिया. उसमें क्या हुआ है, व्हाट ड्रोन टेक्नोलॉजी इज यूज दैट कि आपकी वहां पर पर्सनल प्राइवेसी का वो बिल्कुल ध्यान रखता है और वो कोई ऐसी इमेज नहीं लेता है जिससे आपकी पर्सनल प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, और वो जस्ट हेड काउंट आपके कैप्चर कर लेता है. जैसे ही वो आपके हेड काउंट कैप्चर करता है तो सेम इज द वे कि उनकी रिटर्न में वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, उनकी डिक्लेरेशन में आ जाता है और ये चीजें ऑल टुगेदर चल पड़ती हैं. So we are also working on, there are so many digital initiatives or innovations that we want के टैक्स पेयर जो है उसको वॉलंटरीली कंप्लायंस करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो. जैसा कि ओमर ने आपको बताया कि हम बूस्ट कर रहे हैं वॉलंटरीली कंप्लायंस. वॉलंटरीली कंप्लायंस में हम टैक्स पेयर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन और उसकी कंप्लायंस इंश्योर करने की टेलीफोनिकली, ईमेल्स, दे आर वेरी मच क्लियर दैट कि हमने हर एवेन्यू उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए हमने यूज कर लिया हुआ है.
then we move towards the any enforcement action, but still we think well before कि हमें enforcement action करना है तो उसके repercussions क्या होंगे. हम taxpayer को पहले ही compliance करवाते हैं. और there are so many large taxpayers for PRA. In recent past, when Zainal Abidin Sahi, our chairperson, has initiated the directions that we want a voluntarily compliance. We don't want to enforce our law. We just initiate or we just have to create a culture in which जो टैक्स पेयर है उसको महसूस हो कि मैं अगर एक डिपार्टमेंट में गया हूं या मैंने डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन दी है तो उसका रिस्पांस टाइम क्या है. यही एक कल्चर जब एस्टेब्लिश होगा तो सिस्टम जो है उनको रिस्पांस करने में एक मौका मिलेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट कि जब ये इनिशिएटिव जो आपसे डिस्कस किए हैं और उसके बाद अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आपके पास ट्यूटोरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, बट यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. हम करते क्या बेसिकली, हम इशू ये है कि हमें हमारे माइंड में हमारे ब्रेन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कोई नोटिस आता है तो सबसे पहली चीज क्या क्लिक करती है, हमारे माइंड में एक फियर बन जाता है. जब एक फियर बनता है तो हम भागते हैं जी अच्छा इस फियर को कैसे खत्म करना है, कैसे खत्म करना है. हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते. उसका सोल्यूशन सिंपल इज दैट कि आप उस फियर को खत्म करना है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लें, उस लोगों की कंप्लायंसेस नोटिस में लिखा गया हुआ है और आप जस्ट यू आर वन क्लिक अवे कि आप उस वेबसाइट पे जाएं. अच्छा मुझे अगर रजिस्ट्रेशन का नोटिस आया या रजिस्ट्रेशन करवानी है, कंप्लायंस करनी है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा. यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन एंड यू आर एम्बेसडर्स एज वेल. और इसमें बिल्कुल भी कबात नहीं है कि हम आपको कहें कि जी आप अपने ज़हन में डर ही रखें और हम आपको डराना चाहते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल इसलिए भी नहीं है कि जब आप इफ यू आर एम्बेसडर्स एंड योर इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज वेरी गुड तो इसका मतलब है कि यू विल टेल द 100 मोर पर्संस दैट कि नहीं दैट डिपार्टमेंट इज बेसिकली गिविंग द बेस्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी. तो उसमें एक चीज तो ये है कि आपकी कंप्लायंस भी इंश्योर हो जाएगी और सेकंड चीज ये है कि आपको डिपार्टमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें हमें ये एवेन्यू मिल जाएगा कि अच्छा ये आपकी फैसिलिटेशन हमने रोल प्ले किया है तो उसका इम्पैक्ट क्या है. उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कंप्लायंस रेट से लिंक करता है. जब कंप्लायंस रेट होती है तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट्स की कई ना कई चीजें रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की, रेवेन्यू जनरेशन की अचीव होती हैं. जब देखें जब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं यूजुअली लोगों को ये भी खौफ होता है कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं. जब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं ना डजंट मीन दैट कि जी हमें क्या मिल रहा है. आप ये मत सोचें हमें क्या मिल रहा है, आप ये सोचें कि आपकी स्टेट जो है जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो उसके एक बजट्स हैं, उसकी एक प्रायोरिटीज हैं. हमने जब रेवेन्यू कलेक्ट करके उनको दिया है आपके ही रेवेन्यू से वो दिया है तो आपको जितनी भी पब्लिक सर्विसेज मिल रही हैं जो आपके डोर स्टेप पे आपने शायद अभी उसको गौर ही ना किया हो अपने इर्द गिर्द तो वो बेसिकली आपका ही कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जब आप ये चीजें इंश्योर कर लेते हैं तो उसका मतलब है गवर्नमेंट ग्रो करती है. सेकेंडली ये है कि व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फैसिलिटेट यू पीपल, हाउ इट इज दैट कि जी हम गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करती है. अगर मैं पीआरए की बात करूं तो मोस्टली यहाँ पर क्योंकि अब डिजिटल एरा का दौर बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू द डिजिटल वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं बेसिकली हम, वी कैन कनेक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. PRA basically there are more than 20 services where PRA has reduced its rate after that COVID period starting from 1st July 2020. उसके बाद क्या किया है PRA has initiated that कि if you people that कि जी हम फॉरेन रिजर्व बाहर से यहाँ लेके आना चाह रहे हैं और आप वर्किंग भी कर रहे होंगे, फ्रीलांसिंग भी बहुत सारे होंगे, आप में से फ्रीलांसर्स भी होंगे, फॉरेन रिजर्व आप लेके आ रहे हैं, आपको लगता है कि शायद पता नहीं क्या पीआरए पे हम पे कोई टैक्स तो नहीं लग जाएगा, हम डिक्लेरेशन देंगे तो हमारे लिए मसला हो जाएगा. ऐसा हरगिज नहीं है. द थिंग इज के व्हाट यू आपका लीगल नॉलेज क्या है. अगर चले लीगल नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल्ड नहीं भी है तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो भी आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं मींस कि आप अपना स्किल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज टोटली एग्जेम्प्ट. जब वो एग्जेम्प्ट है तो उसका मतलब ये है कि आप पे उसका सिर्फ डिक्लेरेशन देनी है और आपने उसके ऊपर टैक्स कोई पे नहीं करना. अनलेस एंड अनटिल के वहां पर आपने बिल्कुल ही सही एक्यूरेट डिक्लेयर किया हुआ है और आपकी प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास सारी चीजें हैं और ये चीज एस्टैब्लिश कर रही है तो आपको कंसर्न्ड ऑफिसर या कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से ये फियर नहीं होना चाहिए कि हम ये बजाय इसके कि हम कंप्लायंस करें और ये हमारे पीछे बढ़ दें और बजाय इसके कि ये हमारे पीछे पड़े और फिर हम भागें तो हम डिक्लेयर नहीं करते या हम कंप्लायंस ही नहीं करते. तो एज अ गुड सिटीजन आई वुड सजेस्ट कि आप कंप्लायंसेस को इंश्योर करें. देयर आर सो मेनी वेज in a sense that we can facilitate you and we learn from you people. आपके इनिशिएटिव्स हमारे पास आते रहते हैं. चेयरमैन साहब
is already available with you people. So as a young ambassador, I would suggest you that not only you people, you must ensure the compliance, but also to suggest others and advise other business persons that नहीं मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कब तक मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहेंगे और कब तक हम कहीं और एंगेज रहेंगे जिनकी बेसिस के ऊपर हम अपने काम करेंगे. We have to self sufficient and we have to mobilize our resources by self. That's it. And अच्छा, now इसमें मलौल साहब ने बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है आपको गाइड किया है. एक और चीज मैं मेंशन करूंगा कि आपको डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा है. वो ये फायदा है कि अच्छा, मैं बार बार एग्जांपल रेस्टोरेंट की इसलिए देता हूँ क्योंकि एक कॉमन सेक्टर है और हर किसी का उससे इंटरेक्शन होता है, तो जरा बेहतर समझ आ जाती है. आप एक रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं. जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ये लाइक फॉर एग्जांपल केचप और चिकन और ये चीजें, आप फॉर एग्जांपल इस पे पीछे आप टैक्स पे करके आते हैं. अच्छा, जब आप डिपार्टमेंट में रजिस्टर ही नहीं है तो जो ये आप टैक्स पीछे पे करके आते हैं ये आप क्लेम भी नहीं कर सकते. हाँ, अगर आप डिपार्टमेंट में रजिस्टर होंगे और आप सेल्स टैक्स कस्टमर से चार्ज कर रहे होंगे तो ये जो आप पीछे टैक्स पे करके आए ये आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं. ये इनपुट और आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट है. इसकी बहुत डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन आई थिंक यू गेट द पिक्चर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बाद मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि पीआरए में आपने रजिस्टर कैसे कराना है अपने आप को. कोई भी अपना नया वेंचर खोल रहा है अगर आफ्टर ग्रेजुएशन, उसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आपके पास एनटीएन होना चाहिए, नेशनल टैक्सेशन नंबर, जो कि एफबीआर का होता है. वो आजकल सीएनआईसी के थ्रू भी, वो इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है, वो आप ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं. अच्छा, जब आपके पास वो एनटीएन आ जाता है तो आपके पास दो तरीकेकार हैं. आप पीआरए की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्टर भी करा सकते हैं अपना बिजनेस, और आप फिजिकली हमारे टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर में भी आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ. सबसे पहले जैसे कि एक एनटीएन है. एनटीएन के बाद आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. बिजली का बिल या गैस का बिल जो आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे आता है उसका रेफरेंस नंबर होना चाहिए. और ये तमाम चीजें आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा, और वहां से अपने आप को एक्टिवेट करके तो वो जो टैक्स सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट बिजनेस प्रेमिसेस पे लगा होता है. तो मेरा ख्याल है कि यही है. विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि आप लोगों के अगर क्वेश्चंस हैं तो वो आप से पूछ सकें. Thank you so much, Mr. Umar and Moh Loyal. I'm saying Mah Loyal, if I'm not wrong. I'm really sorry, मैं pronounce at times गलत कर जाती हूँ. No issue at all. It's just Maloyal. Loyal is English word Maloyal, and before that Mah Loyal Fazal. Mah Loyal. Okay. Before going to question answering from the students, मैं चाहूँगी कि कुछ questions मेरे हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी. उसमें एक तो ये है कि आप जब एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हो तो इट्स अ लॉट ऑफ चैलेंज, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें करनी होती है और उसमें काफ़ी चीज़ों की आपके पास गारंटी भी नहीं होती. और ड्यू टू सम रीज़न, इफ़ गॉड फॉरबिड कि आपको अब आपने पीआरए से रजिस्टर कर लिया हुआ है, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर आपको फॉर सम रीज़न अपना जो है रजिस्ट्रेशन है एससीसीपी या टैक्सेशन बॉडी जिस तरह पीआरए वगैरह है, तो उसमें से अगर अपनी कैंसिलेशन करवानी हो तो उसका क्या प्रोसेस है और किस तरह वो कर सकते हैं विद मिनिमल कॉस्ट एंड विद नो कॉस्ट ऑब्वियसली. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि असल में एक्चुअली में होता क्या है कि बेसिकली जब आप कंसल्टेंट या किसी लॉयर के पास जाते हैं ना, वो लॉयर अपनी फीस ले रहा होता है. उसमें गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम एससीसीपी की अपनी एक रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, लेकिन इन एडिशन टू दैट देयर आर नो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस. सेम इज द केस विद पीआरए, स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टिल द डी रजिस्ट्रेशन. योर क्वेश्चन इज दैट कि मैंने रजिस्टर करवा लिया, डी रजिस्टर करवा लिया. Starting from the registration till the registration, by following the procedure, there is no cost involved in that. We don't charge anything. मतलब अगर आपने एक एनटीएन पीएनटीएन भी इशू करवाना है तो we don't charge anything. Even we provide you the certificate instead. कि जी ये आपका सर्टिफिकेट और आप ये अपनी प्रेमिसेस में प्लेस करें और you are a good citizen. अच्छा, उसमें तरीकेकार अगर आप फॉलो करते हैं डी रजिस्ट्रेशन के लिए तो there is a procedure that के फॉर्म EST1 फॉर्म is available for डी रजिस्ट्रेशन. इन केस अगर आपका बिजनेस नहीं भी चलता,
तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, आप कंप्लायंस भी कर रहे हैं, 1-2 महीने जितना आपने काम किया, जितने आउटपुट है आपने टैक्स भी दे दिया, और अब आप उसको डी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, देन यू कैन डी रजिस्टर। ये मतलब नहीं है कि इसमें डी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वी आर ऑफ द व्यू दैट कि अगर आपने अपनी एक डिक्लेरेशन दे दी है कि जी आप अपना बिजनेस क्लोज कर चुके हुए हैं, देयर इज अ प्रोसीजर बिहाइंड दैट, तो आप उस प्रोसीजर के तहत अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो डी रजिस्टर हो जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट समटाइम लोगों को लगता है पता नहीं एससीसीपी में भी ये पता नहीं कंपनी निकलती है नहीं निकलती। आई एम विटनेस दैट, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग द पीआरए, एंड इन कनेक्शन विद दैट आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज एन सर्टिफिकेट इशूड बाय द इजी एग्जिट सर्टिफिकेट। एससीसीपी इशू करता है जब उसने डी रजिस्टर करना होता है, किसी कंपनी को अपनी लिस्ट से निकालना होता है, तो वो इजी एग्जिट सर्टिफिकेट इशू करता है। तो जब वो इजी एग्जिट सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसके बाद वो पीआरए में भी अप्लाई करता है। जब पीआरए में अप्लाई करता है तो डेफिनेटली उसकी एज पर लॉ जो भी उसकी बाइंडिंग्स है वो कंप्लीट देखने के बाद वो एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी जाती है और वो केस जो है वो इजी एग्जिट हो जाता है और डी रजिस्टर हो जाता है। राइट। अच्छा, तो जो लाइक कैंसिलेशन प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं कि लाइक मैं ये बताना अच्छा ऑलराइट प्लीज कैरी ऑन नहीं आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे थे। नहीं वो एक्चुअली वो बस एक पॉइंट था, प्लीज कैरी ऑन। ऑलराइट। हाँ जी, तो उसका बेसिकली मुझे था कि आप अगर थोड़ा सा कैंसिलेशन की तरफ भी अगर पॉइंट आउट कर दें, बिकॉज कोविड में ये चीज़ भी काफ़ी लोगों ने फेस की है कि जो बिजनेसेस एक ब्लूम पे थे, कोविड ने आकर टोटली ऑपोजिट किया है। तो उसका क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली अगर आपने कैंसिलेशन करवानी है तो? इसका मैडम सिंपल प्रोसेस ये है कि हमारा जैसे कि अभी इन्होंने अर्ज किया कि डी रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है, ठीक है, वो डी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर दें, और उसके अलावा आप एक और भी कर सकते हैं कि आप कमिश्नर एनफोर्समेंट पीआरए के नाम एक रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं कि बिजनेस प्रेमिसेस हमारी बंद हो चुकी है और हमारी कोई पीछे से लाइबिलिटी नहीं है टैक्स की, तो काइंडली हमें डी रजिस्टर कर दिया जाए। तो उसके बाद आप लीगली अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन सेम इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है न्यू स्टार्टअप से कि व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस जनरली एक परसेप्शन हम लोग लेते हैं कि एटलीस्ट वी शुड गिव द इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर और द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एटलीस्ट 2 to 3 years टू लाइक एक फ्री टाइम होना चाहिए जिसमें वो अपना न्यू सेटअप इस्टेब्लिश कर लें, और उस तब तक वो चलो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा दें और बाकी चीज़ें कर लें, बट जो आपकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके बाद स्टार्ट हो। तो उस पे क्या आपके थॉट्स हैं, उस चीज़ पे क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट में यूजुअली होता ही है कि इन आर सोसाइटी हम लोग या लोन बैंक से लेते हैं, या मोस्टली तो हमारा लोन अपने पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं। तो उस चीज़ में आप लोग आपकी थॉट्स क्या हैं? जी, उसमें मैडम ऐसे है कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि सेल्स टैक्स जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप फॉर एग्जांपल आपने अपना बिजनेस खोल लिया है, अभी आपने फॉर एग्जांपल चाहे लोन लेके खोला है, तो सेल्स टैक्स आपने खुद से जमा नहीं कराना हुकूमत को। आपका जितना बिजनेस चल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके उस दिन में शायद चाहे एक कस्टमर आ रहा है, आपने उससे सेल्स टैक्स की स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करनी है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं कोविड के बाद 3-3 महीने जिनके बिजनेसेस बंद रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस बंद रहा है तो हम टैक्स कहाँ से दें। तो उन्होंने टैक्स नहीं पे करना, उन्होंने क्या करना है कि सिर्फ एक नल की रिटर्न फाइल कर देनी है कि हमारा बिजनेस जीरो हुआ है, हमारा बिजनेस हुआ ही नहीं है। तो जो देखें, एक जो लॉ है, लॉ को तो हमने इंप्लीमेंट कर, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि गाड़ी चलाने के लिए उसका लाइसेंस आपको लेना जरूरी है, तो इसी तरह आप एक सर्विस का बिजनेस रन कर रहे हैं तो रजिस्टर होना जरूरी है। उसकी बेस पे जितने आपके पास कस्टमर आते हैं उनसे आप टैक्स लेके हमें जमा करा दें। और ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि आप आउट ऑफ पॉकेट अपनी पॉकेट से कोई सेल्स टैक्स की पेमेंट करें, क्योंकि ये तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। I hope that clears your concern. Right. Thank you. Last question from my side is कि यही जो बात मैंने की थी कि लोन वगैरह लिया होता है और वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, at times there are things कि वो अपनी जो ऑफिस स्पेस है उसको नहीं अफोर्ड कर पाते, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, फिर कमर्शियल बिल्डिंग में शॉप लेना है, या इस तरह की फैसिलिटीज नहीं वो अफोर्ड कर पाते। सो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट का कोई उसमें रोल होना चाहिए टू प्रोवाइड सच फैसिलिटेशन टू द स्ट्रगलिंग बिजनेसेस? दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, सजेशन है हमारा, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? इसमें ऐसे है, व्हेनेवर अ बिजनेस स्टार्टेड,
नॉर्मली ट्रेंड क्या होता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर बिजनेसेस लॉसेस में ही होते हैं। अगर पीआरए की बात करें, उमर साहब आपको यही बेसिकली बता रहे थे कि इफ यू आर वर्किंग विद अनदर पर्सन, सपोजली मैं आईटी की सर्विसेज मैं ओरेकल को देता हूँ, ओरेकल सर्विसेज मुझे देता है या मैं आईटी की सर्विसेज ओरेकल को देता हूँ, तो मैंने बेसिकली ओरेकल को इनवाइस करनी है। बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, मैंने ओरेकल से चार्ज करना है उस इनवाइस के ऊपर। वो टैक्स जो मैंने लेना है उस टैक्स को मैंने एडजस्ट करना है अपनी परचेजेस के साथ। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, सपोजिटली मैंने ओरेकल से 100 रुपीज का टैक्स क्लेम कर लिया, मींस कि उसको मैंने टैक्स चार्ज कर दिया, और मैंने अब वो टैक्स जब अपने पास ले आया मैं, अब मैंने उसको अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ तो करना है। अदर साइड में देखता हूँ कि मेरे ऑफिस का बिल आया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया हुआ है 50 रुपीज का, तो वो 100 रुपीज जो मैंने उससे चार्ज किया हुआ है, बेसिकली जो परचेजेस में मैंने टैक्स दिया हुआ है वो 100 रुपीज इज एडजस्टेबल टू दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इट मींस दैट योर नेट लायबिलिटी वुड बी 50। So first thing is that must be clear that there are two sides of taxation in PRA on services. That one is your input side or purchases side, and other is your sales or output side. So both are adjusted subject to what nature of services that you are offering. अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, वो ये होती है during that COVID period हमें काफी challenges आए। जब COVID period आया तो उसमें ये हुआ कि businesses क्योंकि बहुत ज्यादा shift हुए towards the closing, तो उसमें ये हुआ कि हमने बाकायदा एक 3 महीने फॉर द वेरी 3 मंथ्स हमने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें हमने सर्विसेज का रेट जीरो कर दिया। जब सर्विसेज का रेट जीरो कर दिया तो इसका मतलब है कि जीरो रेट के साथ आप डिक्लेरेशन तो दे सकते थे अपनी, लेकिन टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर कोई नहीं थी। सेम इज द केस विद अदर सर्विसेज कि जब 1 जुलाई 2020 के बाद हमने अपना फाइनेंस बिल अप्रूव करवाया, तो कि बाय कीपिंग इन माइंड द कोविड टेन्योर एंड टू फैसिलिटेट द बिजनेस पर्संस, बजाय इसके कि हम 16% आपसे टैक्स चार्ज करें, वी हैव रिड्यूस ओवर रेट्स अप टू द 5% ओनली without input tax adjustment, and 5% and even 2% tax rate is very much nominal for a businessman। उसको लगेगा कि जी 16% मैं दे रहा था, मुझे 5% देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट और आपकी टैक्सेशन के जो कंप्लायंसेस हैं वो भी पूरी हो रही हैं, आप टैक्स पे भी कर रहे हैं, लायबिलिटी भी दे रहे हैं, और आपकी कंप्लायंसेस के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट हो रहा है। गवर्नमेंट इसमें अपना रोल प्ले कर रही है टू डिलीवर द पब्लिक सर्विस। तो इसमें ये एक क्लैरिटी रखें अपनी माइंड में, आप ये बिल्कुल ना सोचा करें कि आप आउटपुट टैक्स दे रहे हैं और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। एज पर लॉ देयर आर थिंग्स अवेलेबल दैट कि अगर आप आउटपुट पे कर रहे हैं तो दैट इज एडजस्टेबल टू योर इनपुट, तो वो एडजस्ट होने के बाद आपको पे करना है। तो अल्टीमेटली वो एक लायबिलिटी जो है और वो जो एक फैसिलिटेशन जो आप बात कर रहे हैं कि जी उसमें क्या बेनिफिट है, वो बेनिफिट ऑलरेडी आपको अवेलेबल हो जाता है। अदर देन दैट बेनिफिट देखें, डिपार्टमेंट जो है दे आर वर्किंग ऑन मैनी टैक्स पेयर्स, वी हैव व्हेन ह्यूज नंबर्स ऑफ टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड विद पीआरए। But the thing is that how we can make every taxpayer compliant. We have introduced our systems that are based on technology, that are fully based on fair systems, and what we want is that कि कोविड के पीरियड में अगर एक बंदा अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहा है तो उसकी डिक्लेरेशन और उसकी कंप्लायंसेस में उसको आना ना पड़े। उसको अगर आना नहीं पड़ेगा, एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस रेट भी दे रहे हैं आपको, और एट द सेम टाइम हम सिस्टम एफिशिएंट बना के आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है। यू कैन कीप इन टच विद अस थ्रू एन ईमेल, थ्रू ए फोन कॉल्स, थ्रू ए वीडियो लिंक, एंड व्हाटएवर द पोजीशन अवेलेबल। एंड मिस्टर किया इसमें एक पॉइंट ऐड में ये करना चाह रहा था फैसिलिटेशन के हवाले से कि कई दफा होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स हमसे टैक्स रेट निगोशिएट करने भी आ जाते हैं हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन के पास। जैसे अभी रिसेंटली ड्राई क्लीनर्स एसोसिएशन जो है वो आई थी, उन्होंने अपने हालात बताए कि कोविड के बाद वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो काइंडली उनका जो टैक्स रेट है वो कम कर दिया जाए। तो इस पे जो है ना फिर ये इसकी एप्लीकेबिलिटी हो गई थी। और ओवर एक अभी मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि जो हमारा टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर है, हम लोग गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। आप गाइड करने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं कि हम लोग आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है अकाउंटेंट कंसल्टेंट की, वो हम खत्म कर रहे हैं। जब आपको पूरी गाइडेंस ही इदारे से मिल जाएगी तो वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट खत्म हो जाएगी जो कि आपकी एक अकाउंटेंट और कंसल्टेंट पे लगनी थी। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी मेजर कॉस्ट होती है किसी भी बिजनेस की, जो कि हमने खत्म कर दी। इन एडिशन टू दैट देखें, दो कंसर्न्स टैक्स पेयर्स के बड़े होते हैं कि जी द वन थिंग इज दैट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड अदर इज कि व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस।
we are working on that. But we, as I told you earlier कि हम even harmonization के ऊपर काम कर रहे हैं. Supposedly अगर एक टैक्स पेयर को 4 जगह पे वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, KPRA में भी है, पंजाब में भी है, तो उसके लिए हम सिंगल रिटर्न का एक ऑप्शन दे रहे हैं. मींस कि आपको यू आर वन क्लिक अवे, आपको 4 जगह कंप्लायंसेस नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है. आप वन क्लिक अवे हैं और अगर आपने एक जगह डिक्लेरेशन दी है तो वो ऑटोमेटिकली बाइफरकेट हो जाएगी 4 डिफरेंट जुरिसडिक्शंस या 5 डिफरेंट जुरिसडिक्शंस में, और आपकी डिक्लेरेशन और कंप्लायंस जो है वो इंश्योर हो जाएगी. इससे आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. राइट, थैंक यू. आई वुड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट की तरफ से, वो मैं पूछना चाहूंगी आपसे. ओके, हमारे यहाँ पे लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, डॉक्टर न्यूट्रिशन साइंसेज, डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी भी है, तो वो लोग जानना चाह रहे हैं कि इफ दे आर विलिंग टू हैव अ क्लिनिक, तो उसके लिए क्या आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हो, या उसके लिए भी PRA से रजिस्टर करना होगा अपना क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए? अच्छा, बेसिकली लेटली 2019 में हॉस्पिटल्स और जो कंसल्टेंट्स हैं डॉक्टर्स, उनके ऊपर टैक्स लगा था. लाइक जिस डॉक्टर की फीस 1500 से ऊपर है और जिस हॉस्पिटल में रूम का 6000 से ऊपर पर नाइट चार्जेस हैं, उस पर टैक्स लागू हुआ था. लेकिन कोविड सिचुएशन के बाद अब सारी मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर्स, टैक्स जीरो रेट कर दिया गया है. तो उस केस में अभी PRA में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि टैक्स आपको सेल्स टैक्स देने की रजिस्ट्रेशन बेशक आप करवा सकते हैं, डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं, वो क्योंकि जीरो रेटेड है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जिस तरह जस्ट लाइक एन एग्जाम्प्ट, तो जीरो रेटेड में आपका ये होगा कि ऑन अ प्लस साइड के आपकी डिक्लेरेशन आ जाती है, जीरो रेटेड होती है, लायबिलिटी आपकी कोई नहीं है, बट ऑन द अदर वे दैट कि आप कंप्लायंस जो अपनी इंश्योर कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो चलता रहता है साथ साथ. राइट, ओके. आप लोगों का as being a part of PRA, what advices you would like to give to the emerging entrepreneurs? इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडवाइसेस यही हैं. देखें, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स में यूजुअली द यंग ब्लड इज देयर. पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग, अक्सरियत यंग लोगों की है, जिसको यूथ कहते हैं हम यूजुअली. अच्छा, उसमें द थिंग इज दैट अगर तो आपके जहन में कोई फियर है इस तरह का कि जी अगर हम कंप्लायंस करेंगे गवर्नमेंट के साथ तो हमें पता नहीं क्या गवर्नमेंट डंडा चला देगी हमारे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है. First, you have to clear your mind regarding the fear about the government or government state organizations. उसमें अपने आप को क्लियर रखें. If you are making or ensuring your compliance by your side, the government कभी भी आपको ये enforce नहीं करवाती कि जी आप इसके ऊपर आएं, क्योंकि हम voluntarily compliance आपकी साइड से चाहते हैं. First thing. Second thing is that we have an application TEL PRA, TEL PRA. The application is available on Play Store. If you have suggestions, supposedly name ideas, we learn from you people obviously, and we have also initiate our ideas. अगर आपको लगता है कि आपके कोई proposals हैं regarding the taxation, supposedly एक question है मेरे सामने भी आया अभी थोड़ी देर पहले, regarding if you have proposals, it means कि जी आपका अभी current position ये है और हम चाह रहे हैं कि जी young entrepreneur कि इन चीज़ों के ऊपर आप young entrepreneur को facilitate करें, तो डेफिनेटली वो प्रपोजल कभी भी आपका रिजेक्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कि आपकी रिप्रेजेंटेशन सुनी ना जाए. उसमें ये होता है कि आप चेयरपर्सन को लेटर लिखें, चेयरपर्सन को अपने पॉइंट्स और अपने जो भी आपको लगता है कि ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, इसमें ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है या ये पॉलिसी अडॉप्ट करने की जरूरत है, तो चेयरपर्सन वुड कॉल अ मीटिंग विद यू पीपल एंड ही विल एडवाइज यू whatever he thinks that कि नहीं ये आपकी बात अच्छी है, आपका प्रपोजल हमें अच्छा लगा, PRA को अच्छा लगा, and that must be implemented in a best efficient way. We don't want कि हम अपने तौर पे उसकी वर्किंग करके और लॉ को इम्प्लीमेंट कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है. It is always win-win situation and we always welcome the proposals from different industries and I would suggest you people that if you have queries and if you have proposals on taxation, you must share this in writing either or through an email or through the use of application that is TEL PRA, TEL PRA. इसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर देता हूं कि जो टैक्स फैसिलिटेशन ऑफिसर का जो है ना वो चार्ज मेरे पास है
और आप में से किसी को भी टैक्सेशन से हवाले से कोई प्रपोजल पेश करना है तो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे पास ऑफिस भी तशरीफ ला सकते हैं। आप मैडम मारिया से मेरा ईमेल एड्रेस और जो है ना वो चीज़ें ले सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम अगर किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है। So don't hesitate. The thing is that don't hesitate. ऐसा बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है कि जी आपकी कोई बात आपने लिख के दे दिया, पता नहीं वो कोई फाइल दब जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं होता। यहाँ पर हर लेटर, हर कॉरेस्पॉन्डेंस दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड डिस्कस्ड इन डिफरेंट मीटिंग्स। यू आर मोर देन वेलकम। वी वुड सजेस्ट दैट कि अगर आपको कोई एज एन होल कोई आइडिया आपको लगता है कि नहीं ये टैक्सेशन करंट में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी रिसेंटली एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फेडरल लेवल पे एक ई कॉमर्स पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आईटी सर्विसेज, क्योंकि वो रिलेटेड है, तो आईटी सर्विसेज के ऊपर फिर डिपार्टमेंट्स को भी इंगेज किया गया। पीआरए हैज आल्सो बीन इंगेज। तो हमारा आईटी सर्विसेज के ऊपर 16% रेट था, तो उसको हमने कीपिंग इन व्यू दैट कि जी कोविड भी है और हम अपनी फॉरेन रिजर्व्स को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो 5% के ऊपर हम ले आए हैं। तो इट मींस दैट कि वी वांट यू पीपल दैट कि आप अपना बिजनेस भी करें, अपनी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को कम से कम भी हो आपकी, और आपकी कंप्लायंसेस भी इंश्योर हो, और हम आपको साथ साथ फैसिलिटेट करते जाएं। जी जी, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूँगी कि देयर आर स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि अगर फॉर एग्जांपल पीपल आर अनअवेयर ऑफ दिस होल प्रोसेस, तो अगर वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं एंड दे डोंट नो अबाउट इट कि किस तरह करना है, किधर जाना है, किस तरह करते हैं, तो उसकी कोई पेनल्टीज हैं आपके पास, या लाइक क्या एंड डेडलाइन है कि उससे पहले उन्हें कर लेना चाहिए इस पीआरए के साथ रजिस्टर? देखें, इसमें ऐसे है कि दो चीज़ें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। एक तो ये है कि एक सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर ही नहीं है और वो सेल्स टैक्स कस्टमर से चार्ज कर रहा है और अपनी जेब में डाल रहा है, तो वो तो एक बहुत बड़ी ऑफेंस है। लेकिन अगर किसी के पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि उसने डिपार्टमेंट में को रजिस्टर करना था और उसने अपना सर्विस सेटअप खोल लिया है, तो इसमें कोई किसी किस्म की पेनल्टी नहीं है। आप जब चाहें वॉलंटरीली कोई डिपार्टमेंट आपका पुराना रिकॉर्ड खोल के आपको तंग नहीं करेगा। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं। लॉ के अंदर भी अगर आप लॉ रिलेटेड भी बात करें, तो लॉ के अंदर जो सबसे पहली चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं शुरू से ही, दैट इज वॉलंटरीली कंप्लायंस। इफ अ टैक्स पेयर इज वॉलंटरीली रजिस्टर्ड, तो व्हाई वुड डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन क्या होगा? चले अगर जिसके भी क्वेश्चन चाहिए, डिपार्टमेंट को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि आपको शायद ये हो सकता है कि प्रोसीजर क्लियर नहीं है। प्रोसीजर क्लैरिटी के लिए टैक्स फैसिलिटेशन ऑफिस है फर्स्ट थिंग। अगर आप ये चाहते हैं टैक्स फैसिलिटेशन ऑफिस में विजिट भी नहीं कर सकते, तो पीआरए की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहां पे सारे ब्रोशर्स, एडिटोरियल एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। You even if you have an NTN with you, then you don't have to come with PRA. आपने क्या करना है, वहां पर एक फॉर्म ओपन होता है ऑनलाइन, जैसे जस्ट लाइक एक फॉर्म आपके पास, आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, वो फॉर्म आपने फिल करना है, एक्टिवेशन कोड्स होते हैं, ईमेल पे जाते हैं, मोबाइल पे जाते हैं, अपना अकाउंट एक्टिवेट करें, देन यू आर वॉलंटरीली कंप्लायंस। उसके बाद करना क्या है कि मंथली स्टेटमेंट होती है या रिटर्न होती है। अगर आपकी एक्टिविटी है तो आप डिक्लेयर कर दें, अगर एक्टिविटी नहीं है तो नो बिजनेस एक्टिविटी एज अ नल रिटर्न फाइल कर दें, सिंपल। Okay, thank you so much, Mr. Umar and Mr. Mahloyal. एक last चीज, I would like you guys to give your closing remarks for the entrepreneurs. वेल, क्लोजिंग रिमार्क्स में ये कहेंगे कि वेरी सिंपल, परेशान बिल्कुल ना हो। इदारा आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है और खुल के जो है ना वो बिजनेस की तरफ जाएं, क्योंकि जितना बिजनेस आप लोग स्टार्ट करेंगे, और बड़ी अच्छी चीज़ है कि आजकल ये ट्रेंड आ चुका है एंटरप्रेन्योर्स में, एंटरप्रेन्योर साइड का जो है ना ट्रेंड आ चुका है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको कैरी ऑन करें और आपको किसी किस्म की इदारे की तरफ से परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? फॉर दैट एंटरप्रेन्योर्स, आई जस्ट वांट टू से दैट कि जस्ट वैनिश योर फियर इन योर माइंड। ये आपके माइंड में ही है फियर, और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट देखें, अपनी जब आप कंप्लायंसेस और अपने फियर को खत्म करके जब आप कंप्लायंसेस कर देते हैं, वॉलंटरीली कल्चर आपने ही क्रिएट करना है, सिंपल इज दैट। आई वुड से दैट कि वॉलंटरीली कल्चर आपका एज अ होल होगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बिजनेस आपका रन कर गया है, ठीक है, टैक्सेशन चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो उसको डीरजिस्टर करवा दें। अपने माइंड को एट वन पॉइंट इन टाइम रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस क्लियर रखें कि गवर्नमेंट डजंट वांट यू पीपल टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स।
गवर्नमेंट वांट इज दैट कि आप कंप्लाइंसेस करें, ठीक है, अपना बिजनेस करें, उसमें बेनिफिट गवर्नमेंट का अल्टीमेटली इस तरह ही है कि डेफिनेटली जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी के कई सारी चीजें उसके साथ रिलेटेड होती हैं, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही होती है, आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा होता है और आपकी कंप्लाइंसेस भी इंश्योर हो रही होती हैं। तो डोंट गेट एनी फियर रिगार्डिंग द इमेज और परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पर हमें पैराडाइम शिफ्ट चाहिए और वो शिफ्ट आपने यूथ ने ही क्रिएट करना है और वो शिफ्ट आपने अपने लिए क्रिएट नहीं करना। इवन यू कैन रेफर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दिस इंटरेक्शन सेशन with other people as well who want to get businesses on the basis of the compliances. So just banish your fear and go ahead and achieve your milestones, whatever you have set. We are available all the time. We are all available. So thank you so much, madam. Thank you so much. Thank you so much for UMT for arranging such a nice interaction webinar to interact with different entrepreneurs. Hope that the such entrepreneurs would flourish in near future. Inshallah. And definitely work with government as a facilitator. Thank you. Thank you so much, sir. आप लोगों ने टाइम अपने बिजी स्केड्यूल से निकाला इस वेबिनार के लिए. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.